Hello students, welcome back to Galaxy Group of Science. I am Ankit sir and today we are going to start our first poem from Hornbill, that is A Photograph, which was written by Shirley Tulson. Shirley Tulson is an English poetess born on 20th May 1924 and still alive, working on two more books. Her famous work Shadows in an Orchard was published in 1960. Talking about this poem, A Photograph, this poem is written in 19 lines with no stanzas and it was also written in first person. The poem Photograph is tribute paid by poetess to the memory of her mother. An old photograph of her mother when she was 12 years old is pasted on a cardboard. The photograph was taken by her uncle on a sea holiday. Her mother was with her cousins Dolly and Patty paddling in the sea water, and this photograph brought back memories of her mother's childhood and much before the poetess was born. Then, some 20 or 30 years later, her mother looked at the snapshot and expressed her views on that photo. She said how happy were those days, and she also made comments on their look, their appearance, and how their parents used to make them ready for the holiday. Now, in the present, the poetess recalled that it was nearly 12 years since her mother passed away. When she looked at the photograph, memories of her mother's smile came to her. She also understood the difficulty and voidness that she was feeling. The silence caused by the passing away of her loved ones just make a person silent and unable to utter any words. So friends, this poem illustrates three stages of life. The first one is the childhood of poetess mother. Second one is poetess mother's middle age. And the third and the last is the period of life of the poet after her mother's death. Okay, so let's begin the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. अब यहाँ पर देखते हैं पहले क्या बता रहा है? The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling क्या होता है? Walking through shallow water. अगर आपने कहीं बीच पर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो बीच के बिल्कुल नज़दीक का जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैलो वाटर. और वहाँ पर हम जैसे धीरे धीरे हम पानी में जाते हैं उसे हम कहते हैं पैडलिंग. तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ बात की गई है कि हमारी जो पोएटिस है शर्ली टल्सन, उनके हाथ में अभी एक फ़ोटोग्राफ है, राइट. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. अब कार्डबोर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि वो फ़ोटो एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाई गई है और वो फोटोग्राफ मुझे कुछ बता रहा है कि क्या था. When the two girl cousins went paddling. अब यहाँ पर क्या बताया है? two girl cousins. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो या राइट, वो फोटो के ऊपर आप देख रहे हो तीन लड़कियाँ हैं, ठीक है, और तीनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है. तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि उनकी जो दो गर्ल कजिन है वो और उनकी जो मम्मी है वो तीनों ऐसे ही एक जो ओशन है उसमें पैडलिंग कर रहे होते. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. कहने का मतलब ये हुआ कि अगल बगल में उनकी मदर बीच में है और उनके अगल बगल में उनकी दो कजिन्स है, राइट. एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और बीच में खड़ी जो उनकी एक बड़ी सी लंबी सी लड़की है वो कौन है? सम 12 years और सो. करीबन 12 या 13 साल जितनी उनकी उम्र रही होगी. तो ये फोटोग्राफ अभी शर्ली टल्सन के हाथ में है और वो उसके बारे में बात कर रही है. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब पहले हमने देखा था कि ये फ़ोटो किसने खींची हुई थी? उनके अंकल ने खींची हुई थी और उनके अंकल के हाथ में क्या था? कैमरा था और उसी कैमरा से उन्होंने ये फ़ोटो खींची हुई थी. All three stood still to smile through their hair. तीनों, उनकी जो मदर है और उनकी जो दो कजिन्स है वो तीनों अनमूविंगली, स्टिल का मीनिंग क्या होता है? बिना हिले हुए, स्माइल थ्रू देयर हेयर,
इट मीन्स वहाँ पर जो तेज़ लहरें दौड़ रही होगी, उस तेज़ लहरों के बीच में जो हवा ठंडी सी लहर रही होगी, तो उस ठंडी सी हवा में उनके कैमरे की तरफ उनका पोज होगा और वो ही पोज में उनके जो हेयर है वो हवा में उड़ रहे होंगे। तो उसी बीच कैमरे में दिखता है कि वो एक बहुत अच्छी सी स्माइल दे रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और जो हंसता हुआ जो चेहरा दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया फेस है। वो किसका है? मेरी मदर का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये फ़ोटो तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की ये फ़ोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी जो हमें पता है कि फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होगा, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडजेक्टिव दिया गया है ट्रांजिएंट, राइट। उसे शिफ्ट किया गया है लाइफ के ऊपर, ठीक है, लाइफ टू फिट, ओके। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं? एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। वहाँ का जो सी है वो आज के दौरान अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा। वो आज भी अगर हम वहाँ पर जाएंगे, प्रेजेंट कंडीशन में भी वहाँ पर जाएंगे, तो वो जो सी है वो वैसे का वैसा रहा होगा, वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर करंट परिस्थिति को हम ध्यान में लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये फ़ोटो बहुत साल पहले ली गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे उनकी मदर वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। और आज अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वो सी वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आज उनकी मदर उनके साथ नहीं है। वॉज दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फेट। इट मीन्स जो टेरिबली यानी एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट क्यों बताया गया है? ट्रांजिएंट मैंने अभी अभी बताया, इसीलिए ट्रांजिएंट बताया गया है कि आज अगर उस बीच पे हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बीच वहाँ का वहाँ है, लेकिन उनकी जो मदर है वो अभी रही नहीं है, इसीलिए ट्रांजिएंट उसे बताया गया है। उनकी जो लहरें आ रही थी, पानी की जो लहरें आ रही थी, वो पानी की लहरें उनके पैरों के ऊपर से गुजर रही थी। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. अब यहाँ पर शर्ली टल्सन बात कर रही है कि उस टाइम पे जब मेरी मदर किसी से बात कर रही होगी तो क्या हुआ होगा कि करीबन 20 और 30 ईयर्स लेटर, करीबन 20 या 30 साल बाद जब वो इस फ़ोटो को देख रही होगी तो फ़ोटो देखकर हंसती होगी। क्या कहती होगी? सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और उनके पेरेंट्स को ये बता रही है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरीके से ड्रेस किया हुआ था बीच जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। वेरी वंडरफुल लाइन कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर के लिए अब पास्ट हो चुका था। जब वो 12 साल की थी तब वो वहाँ पर गई हुई थी, लेकिन आज जब मेरे हाथ में ये फ़ोटो उनकी मैं देख रही हूँ तो मेरे लिए अब ये एक खुशी का माहौल है। क्यों? यहाँ पर दिखा रहे बोथ राइड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राइड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर कौन सी यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? ऑक्सीमोरन यूज़ की गई है। क्यों? क्योंकि लेबर्ड और ईज वो दोनों कैसे है? ऑपोजिट वर्ड है। लेबर्ड यानी क्या होता है? बहुत ही काम करना, और ईज यानी क्या होता है? कंफर्ट, राइट। तो दोनों ऑपोजिट वर्ड को एक साथ में यूज़ किया गया है एक नया मैसेज कन्वे करने के लिए। क्या मैसेज है? द बियरिंग ऑफ द लॉस ऑफ हर मदर इज़ डिफ़िकल्ट दो देर आर गुड मेमोरीज। वो कहती है कि उनकी मम्मी के जाने का जो डर है, ठीक है, वो तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन फिर भी आज मेरे लिए वो कौन सी है? एक अच्छी मेमोरी बन रही है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Now, she has been dead nearly as many as years that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say to all. It's silence, silences. अब यहाँ पर शर्ली टल्सन क्या बता रही है कि नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब अगर आपको पता है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब ये फ़ोटोग्राफ लिया हुआ था तब उनकी मदर कितने साल की थी? 12 साल की थी।
अब वो यहाँ पर सर्ली टल्सन क्या बता रही है कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी एज ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड। इट मीन्स अब मेरी मदर को गुजरे हुए करीबन उतने साल हो चुके थे जितने साल उस फोटोग्राफ में जो लड़की थे उसके हुए थे। इट मीन्स करीबन 12 ईयर्स, 12 साल हो चुके थे उनकी मदर को पास हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और ये सिचुएशन के ऊपर मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और बिल्कुल ही साइलेंस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ वर्ड रिपीट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि एलिट्रेशन वे में है कि साउंड जो है कॉन्सोनेंट एस वो बार बार रिपीट हो रहा है, साइलेंस से साइलेंस साइलेंसेस, राइट। तो अब इतना साइलेंस मेरी लाइफ में आ चुका है कि अब मैं जो भी चीज़ मेरे अंदर जो भी फीलिंग है वो इसी तरीके से मैं उसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, राइट। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी आपकी पोएम नंबर 1 अ फोटोग्राफ।